Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the arrangement of the different subatomic particles which are present in an atom, means the protons and the neutrons, and their arrangement being discussed on the basis of the different models, that is the Plum-Pudding model, the Rutherford scattering experiment, followed by the another subatomic particle which have no charge, that is the neutron, which been discovered by scientists, that is the James Chadwick. So let's proceed towards today's lecture about all this. Means as we till now we know that there are different charge particles in an atom, and these charge particles are the proton, which have the positive charge, and the electrons, which have the negative charge. But we don't know till now what is the arrangement of the charge particle in an atom, where they are present. We don't know. हमें ये पता है आज की डेट में कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है जो अभी मैंने आपको नीचे डायग्राम में शो कर रखी है. मींस इन द सेंट्रल पार्ट देयर आर प्रोटॉन्स and the neutrons, that called as a nucleus, we all know, and the electrons are continuously been revolving in the fixed path, that is the shell. वहां पे वो रिवॉल्व करते हैं. हमें यहाँ तक पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचे, वो डिफरेंट मॉडल किन किन साइंटिस्ट ने दिए एट द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, उन सभी को अभी हम आज डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, तो वही अब हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि पहले हम जानते हैं कि इट इज टिल नाउ वी नो दैट एटम कंटेन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रॉन्स हैज द नेगेटिव चार्ज. बट द डिफरेंट मॉडल्स आर गिवन from time to time to tell about what is the arrangement of these subatomic particles, that is the positive particle proton and the negative particle, that is the electron, in an atom. And these different models are, the first model is given by the scientist, that is the Thomson, that is the J.J. Thomson in 1904. It states that an atom is like that of the watermelon. वो watermelon की तरह है. Means according to this model, an atom contain a uniform sea of positive charge. Uniform sea of positive charge. जैसे आपने देखा कि ये जो येलो कंप्लीट दिखा रखा है, that is a uniform sea of positive charge in which the electrons are embedded. और जो ये आपको मूवमेंट की फॉर्म में दिख रहे हैं, these are the negatively charged electron. They are embedded, they are immersed more or less uniformly. Means इनकी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट नहीं है. किसके अंदर? इन द sea of positive charge. जैसे कि आपने वाटरमेलन के अंदर आप देख सकते हैं, लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन. जो वाटरमेलन है, इसके अंदर जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्म सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. जो रेड पोर्शन है जो हम खाते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. और जो बीच में जो सीड आपको ब्लैक दिख रहा है, दीज आर द यूनिफॉर्म सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. There is a uniform sea of positive charge. और जो seed दिख रहे हैं, ये क्या है? These are the electrons which are embedded in that uniform sea of positive charge, and these electrons are embedded in that uniform sea of positive charge more or less uniformly. What means more or less uniform? Means आपके जो one seed और दूसरे seed के बीच में देखो, ये जो distance है, देखो यहाँ पे हो सकता है मान लीजिए ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, किसी दूसरी जगह पे हो सकता आप ये जो डिस्टेंस देखें, हो सकता है ये डिस्टेंस आपके 1.2 सेंटीमीटर हो. मींस इसीलिए हमने वर्ड यूज किया मोर और लेस यूनिफॉर्मली. मींस कहीं पे यूनिफॉर्मिटी मिल भी जाएगी. मान लीजिए जहां पे 1 सेंटीमीटर लिखा, दूसरे अगले दो सीड के बीच भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है. उसके बाद अगले यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है. आगे चले वहां पे 1.2 सेंटीमीटर का मिला. मींस ओवरऑल दैट वर्ड हियर इज द मोर और लेस यूनिफॉर्मली. ये इसकी सेंस मैंने आपको बताई है. तो मींस अकॉर्डिंग टू द J.J. Thomson model, an atom contains the uniform sea of positive charge in which the electrons are embedded, or you can say the immersed more or less uniformly, like the seeds in the watermelon or the raisins in the cake. रेजिन्स किसमें बोलो? ड्राइड ग्रेप्स के अंदर मिलते हैं. इन द केक और द पडिंग जिसे आप कहते हैं. सो दैट मॉडल इज कॉल्ड एज द थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम, आल्सो कॉल्ड एज द प्लम पडिंग मॉडल और द रेजिन पडिंग मॉडल, आप इसे कह देते हैं. दैट इज द फर्स्ट मॉडल. लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी. लिमिटेशन किस वजह से आई? वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की वजह से आई जो रदरफोर्ड ने किया था. So next model is the Rutherford model of atom. Rutherford experiment के basis के ऊपर है, and that model is given by the Rutherford in 1911. 1911 और इसी मॉडल के बेसिस के ऊपर डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की कि किस पोर्शन को, एटम के किस पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहें.
तो ये जो जो जे थॉमसन के बाद जो नेक्स्ट ये मॉडल आया, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आया, आपका रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया, आखिर इसमें किया क्या गया था? रदरफोर्ड ने क्या किया? ही बम्बार्डेड द बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स, दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन द थिन शीट ऑफ द गोल्ड. यहाँ पे देखो ये थिन शीट है, यहाँ पे गोल्ड की देखो फॉइल ले ली गई, विच इज सराउंडेड बाय सर्कुलर जिंक स्क्रीन. जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी, देखो ये जो स्क्रीन है बाहर से, ये किस चीज की स्क्रीन है? दैट इज द जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये आपकी. तो इसने क्या किया? ही बम्बार्डेड. देखो एक लेड बॉक्स लिया गया, लेड बॉक्स के अंदर क्या रखा गया? एक सोर्स रखा गया जिसके अंदर से कंटिन्यूटी में बोलो क्या निकलते रहे? अल्फा पार्टिकल्स. और जो लेड बॉक्स है उसमें एक जगह देखो ये स्मॉल पोर रखा गया जिसके अंदर कंटिन्यूटी में बोलो क्या निकल जाए? यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स सिर्फ इसी पोर के अंदर से निकलेंगे. Means that substance, that radioactive substance is taken in the lead box having a small pore through which these alpha particles are coming out, and these alpha particles are now being bombarded on the gold foil. तो मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या किया? ही bombarded the fast moving alpha particles on the thin sheet of the gold, means on the gold foil. That gold foil, that whole of the system being surrounded by the circular zinc sulfide screen. And finally he observed that, उसको क्या दिखा? He observed that most of the alpha rays, देखो आपको दिख भी रहा है, देखो ये लाइन से जाती हुई देखो आपको दिखाई देगी अभी. अब बड़े ध्यान से नीचे स्क्रीन के ऊपर ही देखते रहे, जैसे ये बाहर निकले देखो, ये देखो दिखाई दिया ना आपको, these are the different alpha rays. तो most of the alpha rays goes undeflected through the gold foil. gold foil के अंदर से undeflected वो सीधी चली गई. Some of the alpha rays get deflected by some angles. कुछ जो alpha rays थी they get deflected. देखो कुछ deflect भी आपको होती दिख रही by some angle. And a few means 1 in 10 raised to the power 6. अगर total 10 की power 6 alpha rays अगर gold foil के अंदर से जाती हैं, तो ये पाया गया कि एक ऐसी अल्फा रेज भी होगी विच गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द ओरिजिनल पाथ. उसी रास्ते से वो वापस आ जाए. जैसे आप इस डायग्राम में देखें, देखो डिफरेंट जो आपको फास्ट फास्ट मूव करते हुए दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स. और ये बिल्कुल जैसे ही क्या दिखाई दिया, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे आर गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. और सम ऑफ द अल्फा रेज गेट डिफ्लेक्टेड, आपको दिख रही है, देखो कुछ एक डिफ्लेक्टेड भी हो गई. और आपको इतनी सारी जाते हुए में एक ऐसी दिखाई देगी विच डिफ्लेक्टेड, विच कम्स बैक थ्रू द ओरिजिनल पाथ. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल, on the basis of this all observation, it is conclude that, देखो हमने conclusion क्या निकाला? ये निकाला क्योंकि most of the alpha rays are going undeflected through the gold foil. But it means कि जो हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, और जो एटम के अंदर से है, जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज द अल्फा रेज, वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई. इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी. Most of the space in an atom is empty because most of the alpha rays goes undeflected. Means the, और आपने ये देखा था कि some of the alpha rays get deflected by some angle, और एक alpha rays ऐसी थी out of the 10 की power 6 which get deflected, which comes back through the original path. But it shows that कि the heavy mass, there is something heavy mass जिसकी वजह से कुछ rays deflected हो गई, और एक ऐसी थी जो original path के थ्रू वापस ही आ गई. जो means atom के अंदर जो heavy mass है जिसने अल्फा रेज को क्या कर दिया, बोलो डिफ्लेक्ट कर दिया, और एक अल्फा रेज तो वापस ही आ गया आउट ऑफ द 10 की पावर 6. मींस द हेवी मास इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम. क्यों? बिकॉज ओनली सम ऑफ द अल्फा रेज शोज अ डिफ्लेक्शन. So the alpha rays can only be deflected by some heavy positive charge mass, and which is present at the center of the atom. और वो बड़ा ही छोटा पार्ट होगा. तो ये जो ऑब्जर्वेशन हमारी आई, इसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है इट हैज टू पार्ट. एटम के अंदर दो पार्ट है. कौन से दो पार्ट है? देयर इज ए सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर पार्ट व्हिच कंटेन हैवी मास, और उस हैवी मास की वजह से ही आपकी कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड हुई थी, और उसी हैवी मास की वजह से 10 की पावर 6 में से एक अल्फा रेज कम बैक थ्रू द सेम पाथ. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज द हैवी पार्ट कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. Means it is very teeny part, it is very small part called as the teeny part, which is present at the center of the atom, and it contains the positively charged particles called as the protons. Means protons are present in that teeny part, that is the whole of the mass. Actually whole of the mass is present that teeny part called as the nucleus, called as the nuclear part. Another part is the extranuclear part, where the something light particles are present, and these light particles are
oppositely charged particles, that means these are the electrons, and these electrons are present in the extra nuclear part. Means it is the space around the nucleus in which the electrons are revolving at a very high speed, like the planets which are going to revolve around the nucleus. So these electrons are generally been called as a planetary electrons. इसी बेस के ऊपर ही आपके जो electrons हैं उनको planetary electrons कहा जाता है, because they are also revolving around the nucleus like that of the planets which are going revolving, which are continuously being revolving around the sun. और जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट इज बीन इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो एटम है वो तो इलेक्ट्रिकली क्या है, आपका न्यूट्रल होता है. अब एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल, आपने देखा था अभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान कि उसने गोल्ड फॉइल को यूज किया था. तो ऑन दैट बेसिस आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर से ही ले रखा है, क्योंकि वो बेसिक बुक है, वो एक स्टैंडर्ड बुक है. So in the Rutherford experiment, generally the thin foil of heavy atom like the gold foil is taken for the bombardment of the alpha particles, not the light atom thin foil like the aluminum foil is not been used. Why? ऐसा क्यों? दूसरी बात, अगर हम इसको ले लें, if we take that light foil of aluminum, then what will happen? What will be effect on the results? अगर रिजल्ट्स आएंगे तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो दैट इज द क्वेश्चन. तो इसका आंसर हम कैसे देंगे कि अगर हम लाइट एटम्स की फॉइल ले लें, अगर हम एल्यूमिनियम फॉइल ले लें इन प्लेस ऑफ द हैवी मेटल फॉइल, तो व्हाट विल हैपन? तो ये होगा कि लाइट एटम्स जनरली बीन कैरी द लिटिल पॉजिटिव चार्ज, उनके अंदर कम पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर कम होता है. एटॉमिक नंबर कम होगा तो प्रोटॉन्स की संख्या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या कम होगी तो उसके अंदर लिटिल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से दे विल नॉट कॉज द इनफ डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, वो इनफ डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे. तो जैसे आप फर्स्ट डायग्राम के अंदर देखें, जो फर्स्ट डायग्राम है ये हमने इसमें दिखा रखा है कि काफी पार्टिकल्स आपके जा रहे हैं. तो ये फर्स्ट डायग्राम किसको शो करता है? हैवी मेटल का. जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड की फॉइल है और उस गोल्ड की फॉइल के अंदर ये आपके एटम प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि देखो डिफ्लेक्शन हो रही है. सेकंड फॉइल जो हमने यहाँ पे ली वो हमने हैवी मेटल की बजाय लाइट मेटल्स की ले ली. बोलो किस चीज की ले ली? जैसे एल्यूमिनियम फॉइल. अब दोनों के अंदर डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है फर्स्ट वाली फॉइल के अंदर, तो जनरली देखो आपको डिफ्लेक्शन साफ साफ देखो दिख रही है क्योंकि ये हैवी मेटल की फॉइल है. लाइट मेटल की फॉइल लेंगे तो जैसे कि हमने लिखा कि जो लाइटर एटम्स होते हैं दे वुड generally been carry the very little positive charge, hence they will not cause enough deflection of the alpha particle, जो कि Rutherford experiment में हमने देखा था कि there are many particles which get deflected by some angles and most of the particle go straight forward, but there are some alpha particles which get deflected by some angles. अगर हम लाइट पार्टिकल्स ले लेंगे, एल्यूमिनियम की फाइल ले लेंगे, तो आपके जो कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्टेड हो रहे थे आपकी गोल्ड फाइल के द्वारा, वो अब डिफ्लेक्टेड नहीं होंगे, बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे. तो मींस गोल्ड फाइल अगर हम की बजाय एल्यूमिनियम फाइल ले लेंगे तो that aluminum foil will not cause enough deflection of alpha particle like that of the gold foil. So that is the reason, that's the difference in the result. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, मूलिकन एक्सपेरिमेंट होता है. उसमें क्या पाया गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द शाइनिंग एक्स-रेज. इफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इज फाउंड टू बी -1.282 multiplied by 10 की पावर -18 coulomb. Now calculate the number of electrons present in it. That is also a NCERT question. That is question number 2.39. That is a very basic question. हम सभी जानते हैं, ये तो है given thing. The charge on the oil drop that is given in the numerical 1.282 multiplied by 10 की power -18 coulomb. But that here is the very basic fact about the charge on the one electron. The charge on one electron is 1.6 multiplied by 10 की power -19 coulomb. By knowing that basic fact, we can calculate the number of electrons which are present in a drop of the oil whose whole charge is 1.282 multiplied by 10 की पावर -18 coulomb.
तो इसी फैक्ट को हम यूज करने वाले हैं। देखो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. So 1 coulomb charge is present on how many electrons? 1 divided by 1.6 multiplied by 10 की power minus 19. पर भी 1 coulomb ही है. Now the number of electron present when the charge is 1.282 multiplied by 10 की power minus 18 coulomb, इसको आप multiply कर देंगे. Now after that whole calculation, the answer comes out to be 8 electrons. So the answer is 8 electrons. Means the 8 electron will carry that charge, that is 1.282 multiplied by 10 की power minus में 18 coulomb. तो ये जो charge होता है ये 8 electrons के ऊपर present होता है. So that is very basic question. तो जो आज का लेक्चर था हमने इसमें क्या देखा? हमने टोटल यही देखा कि जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटरमाइन किया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो एटम होता है ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे प्रोटॉन कहा, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन्स. तो उनकी अरेंजमेंट क्या है? तो अभी तक जो हमने सीखा, क्या सीखा अभी तक? पहले जे थॉम्सन मॉडल आया, उसने तो ये कहा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक द सीड इन द वाटरमेलन. लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट अभी हमने सीखा जिसके बेसिस के ऊपर ये कहा गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा है कि बीच में जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट है जहां पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि ये पाया गया, जो डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन की, जो जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट था उसने की थी, उसने ये पाया कि इट इज फाउंड दैट द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नॉट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम. मींस क्या किया गया? कोई एटम लिया गया, मान लीजिए नीचे हमने डायग्राम बना रखा है, ये कोई एटम, इसका मास हमने डिटरमाइन किया और फिर सेपरेटली इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका अलग से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मास देखा गया और ये पाया गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है इस पर्टिकुलर एटम में और जो मास ऑफ टोटल मास ऑफ बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नॉट कम्स आउट टू बी द मास ऑफ दैट एटम. इस एटम के मास के इक्वल वो मिला ही नहीं. तो फिर क्या करें? इसका मतलब कितना मिला? ये इक्वल नहीं बल्कि इट इज फाउंड टू बी लेस. एटम का मास ज्यादा मिला और जो सम ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिए ही कम था. इट मींस इसमें कुछ ना कुछ और ऐड होना चाहिए. तो ये क्या ऐड करें? इट मींस देयर इज समथिंग third type of particle is also present which has mass but no charge. तो इसके बेसिस के ऊपर यही तो हम कंक्लूजन निकालेंगे. तो इसके बेसिस के ऊपर हमने क्या कंक्लूजन निकाला? देयर मस्ट बी सम अदर पार्टिकल इन द न्यूक्लियस व्हिच हैज ओनली मास, व्हिच हैज नो चार्ज, व्हिच मस्ट बी न्यूट्रल, जो न्यूट्रल होना चाहिए. और जो ये थर्ड टाइप का पार्टिकल था जिसके अंदर सिर्फ मास होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, दैट बीन डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट दैट इज जेम्स चैडविक इन 1932. और वो भी कैसे कि ही बम्बार्डेड द फास्ट मूविंग अल्फा रेज ऑन द थिन बेरिलियम फॉइल के ऊपर. जब उसने बम्बार्ड किया उसके बेसिस के ऊपर जो उनकी ऑब्जर्वेशन आई उसी के बेसिस के ऊपर जेम्स चैडविक ने ये कंक्लूजन निकाला था कि देयर इज समथिंग थर्ड टाइप ऑफ पार्टिकल व्हिच आर न्यूट्रल particles and he named these particle as the neutron. और उन्होंने इस पार्टिकल को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया था. जो मास ऑफ द न्यूट्रॉन है वो कितना होता है? वो कितना मिला? दैट इज 1.675 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम. और ये जो मास होता है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर एंड दैट मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.672 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस में 27. देखो स्लाइट डिफरेंस है, 1.672 है यहाँ पे और यहाँ पे 1.675. स्लाइट ग्रेटर मास. न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता. सो दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन. तो आफ्टर द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड द डिस्कवरी ऑफ द बोलो कौन? न्यूट्रॉन. अब क्या पाया गया? इट इज टू बी फाउंड दैट क्योंकि इनके अंदर मास है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पहले ही बता दिया गया था कि जो हैवी मास होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एट द सेंटर. और जो न्यूट्रॉन है इनका मास तो प्रोटॉन से भी ज्यादा मिला. तो where these neutrons should be present, ये कहाँ पे present होने चाहिए? Means after these different models, that is the Thomson model of atom, the Rutherford model of atom, and after the discovery of that neutron, the position of neutron must be in the nucleus. इसकी position भी nucleus के अंदर ही होगी क्योंकि इसके अंदर mass है.
इसके अंदर बोलो क्या है, मास है. So it is concluded that an atom has a nucleus containing proton and the neutron in the central part, that is called as the nucleus, and the electrons are revolving, electrons are present around that central part, that is the nucleus. और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बोलो, रिवॉल्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर बन गई कि सेंट्रल पार्ट दैट कॉल्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पार्ट व्हिच कंटेन प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, एंड देयर आउटर पार्ट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग लाइक, बोलो कैसे, like the planets revolving around the sun. So these electrons are generally been called as the planetary electrons. इनको planetary electron कहा जाता है. generally पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि why the electrons are called as the planetary electrons. So on the basis of the fact that electrons are revolving around the nucleus like the planet revolving around the, like planets revolving around the sun. So these electrons are generally been called as the planetary electrons. इनको planetary electrons भी कह दिया जाता है. So thank you, that all about today's lecture about the arrangement of the protons, neutrons and electron in an atom, कि उनकी arrangement कैसी थी. तो इसके बारे में फर्दर आगे भी देखेंगे. अभी तक जितना बताया गया कि दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के बीच में सिर्फ इतना बताया गया है कि एटम के बीच में क्या है बोलो, आपके न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपके प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. लेकिन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है. जस्ट इतना बताया गया अभी तक कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस like the planets around the sun. लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व फिक्स्ड पाथ के अंदर कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं. वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाके डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.